personality development. And specifically hum as teachers, we are more concerned, we are more kind of looking up to this aspect developing amongst our students, right? लेकिन अब वही चीज़ है कि हम सबसे पहले थोड़ा सा ब्रॉडर कैटेगरी पे समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सनालिटी होता क्या है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम अपने स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखते समझते हैं, तो फॉर देम इट इज़ ओनली द आउटर अपील, योर आउटर appearance, which matters to them, and maybe that is what they're primarily focused upon. But then definitely personality has a lot of kind of concern or a deeper connect to our intrinsic values, our personal beliefs, right? So anything that you would more like to add it, or maybe anyone which where you feel ki now this is what you hold foresee, or you kind of conceptualize personality altogether. एनी वन ऑफ यू, कुछ भी आपको जो लगता है कि ये सबसे बढ़िया तरीके से पर्सनालिटी को पूरी तरह से नरेट करता है कि पर्सनालिटी होता क्या है। Facial expressions. Facial expressions, true sir, right. Would you like to add more something to that? Facial expressions, Bhavin sir? Of course. Actually, see, जी, a gentle smile on our face right, जी, may show, say, we have some positive attitude, or say true, someone may be attracted to interact with us. exactly, So जी, that means टॉक को इनिशिएट करने के लिए वो एक अच्छा वो हो सकता है कि एक true, जेंटल स्माइल है। या फिर अभी हम टीचर्स है, सो इफ वी वांट टू स्टार्ट आवर सेशन, देन it would yeah, be better if we have a smiley face rather than a definitely. serious face. Yeah, yeah, exactly. And in fact, Bhavan sir, you've time and again really, really kind of emphasized, a smile on the face, and which is a very important aspect of personality. And ऐसा है कि as it is, I'm a very, very practical person. Like मुझे to be very frank, I think I must be the least learned person in this whole group, because primarily I what I take my learnings from my experiences, right? And मुझे लगता है कि वही शायद हम ज़्यादा उसको निभा पाते हैं अपनी लाइफ में। सो वही बात है कि जब हम बात करते हैं इवन स्माइल की, as part of our personality, does this have some personal benefit also when we are smiling? Of course people are able to kind of connect with us, it is easier to kind of associate with people who have smiles on their faces. Others are not kind of scared of us, right? And yeah, it's a kind of a more of a pleasant experience. But personally जब हम smile करते हैं तो हमें भी कुछ benefit होता है। डेफिनेटली मैम। एक तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस रिलैक्स होते हैं, फेशियल Sure, definitely, मसल्स थोड़े रिलैक्स होते हैं, और exactly, दूसरा जी, बेसिकली मतलब बॉडी को भी एक पॉजिटिव फील मिलता है। एंड exactly, very true sir, very true. And then simultaneously it is like जो हम कहीं ना कहीं showcase करना चाह रहे हैं वो हम ज़्यादा honesty के साथ, ज़्यादा sincerity के साथ कर पाते हैं, because smile as it is, it has a very, very strong kind of a relaxing and a positive impact onto us, no matter how much tense may be the situations, right? Then of course we've got inputs from Priyanka ji, where Priyank, I might be going wrong. Is it Priyanka or is it Priyanka? I mean, yeah. Yeah, so that's what I mean. Priyanka Pandey writes ki confidence adds to the matlab, it's a very kind of a crucial part of our personality. Same Shah Samir ji says it's not merely skin deep, but in addition to that, enthusiasm, honesty, openness. Wonderful. I'm really glad to get that kind of an input from you, Shah Samir ji, because very frankly, first and foremost, to begin with, let's try and differentiating between two terminologies. Now that is, one is personality and another is character. So what do we think is more important? Personality and the other is character, right? Or is it something is a subpart of, is it that personality is a subpart of character, or character is a subpart of personality, or they're all together two different
terminologies. अब पर्सनालिटी को हम कई तरह से समझ चुके हैं, राइट? अब कैरेक्टर, सो शाह समीर जी सेज कैरेक्टर मैटर्स मोर, राइट? I अब think कैरेक्टर, as per या our personality may represent, sorry, our character may represent our personality. Our कैरेक्टर, personality is dominated by our character, inherent well. Means we cannot do something, if we are doing something, say, just for a showcase, then it will not be long lasting. एग्जैक्टली, वो थोड़े टाइम में वो फिर मतलब वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा. ट्रू, ट्रू, और सो जो हमारा कैरेक्टर है वो कभी ना कभी हम बाय वन वे और अदर वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ आवर पर्सनालिटी. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू. सो हमारा जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं, आई मीन दैट्स द सेम थिंग विच आई एम ट्राइंग टू राइट एज वेल. शुड जस्ट अ सेकेंड, एंड व्हाट इवन जस्ट भवन सर ऑल्सो सेड कि बेसिकली हमें फेक नहीं करना है, राइट? हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारी पर्सनालिटी में भी दिखाई देना चाहिए. और आई वुड से आवर पर्सनालिटी शुड रिवील द ट्रू पिक्चर ऑफ आवर कैरेक्टर, right? Now that's it. I mean, yeah, our personality should reveal the true picture of our character. So now Anita ji says personality is part of character, definitely. And personality is actually the external, appearance, or maybe the way how people can visualize us. That is our personality. Character, which is more intrinsic, or maybe the real self, the real individual who we are, राइट? समटाइम्स जिसमें कुछ हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो दूसरे बाहर से लोगों को समझ नहीं आती हैं या दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो हमारे कैरेक्टर का पार्ट होती हैं. तो आई बिलीव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, right, we should develop a personality which showcases our real character. That means whosoever we are, howsoever we may be, right? Whether we are very courageous, whether we are somebody, very committed, if we are somebody very truthful, very loyal, or is it somebody, we are more of a casual or a laid back person. Everything should be kind of, put together, be a part of our personality. That's how people visualize us, right? But then definitely when it comes in the public space, right, that means jahan pe ab log hame dekh sakte hain, kahin na kahin they can make assumptions about, the kind of person we are, or maybe kind of even make evaluate or assess us for our character also. That means we have to do something on our personality aspect कि कहीं लोग हमारे कैरेक्टर को मिसअंडरस्टैंड ना करें, राइट? कैरेक्टर जो हमारा सबसे इंटीग्रल पार्ट है, हमारे अपने पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल बिलीव्स, राइट, हमारे प्रिंसिपल्स, वो सब मिलकर हमारा कैरेक्टर बनता है. लेकिन कई बारी हम अब उसको एग्जैक्टली वैसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं अपनी पर्सनालिटी में जैसे हम इंट्रिंसिकली हैं, एंड जिसकी वजह से लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या मे बी हमें शायद उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, या कई बारी यस हमारे से वो अपॉर्चुनिटीज़ भी छीन ली जाती हैं जो हम एक्चुअली यस करने के लायक हैं, या जो डेफिनेटली हमें क्रेडिट होनी चाहिए. एंड दिस इज सेम फॉर द सिचुएशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो एज इट इज यस मे बी कैरेक्टर में अच्छे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको अपने उसको पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करना नहीं आता है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गैप एग्जिस्ट करने लगता है. अब अगर हम लोग बेसिक्स पे जाएं, जब हमने पर्सनालिटी शायद सबसे पहले सुना था या समझा था, या कहीं ना कहीं वी वर थिंकिंग अबाउट कि व्हाट आर दोस डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज. सो आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ. So I think my screen is visible. Yes, ma'am. My slide visible? Yeah. So I think jab broadly, I mean, or maybe the most layman aspect of personality, what we understand it, that there are broadly these two different kind of personalities, extrovert and introvert, right? And I think majority of us, we kind of keep flipping between these two broad categories, right? And
trying to prove ourselves or trying to justify ourselves ki whether I am a true introvert or am I a true extrovert, or maybe I'm somebody, who does not kind of what align with these two extreme categories, so I can be an ambivert also. Ambivert is something which is a blend of extrovert and introvert, जहाँ पर आप थोड़े से ज़्यादा अपफ्रंट हैं, ज़्यादा पब्लिक पर्सन हैं, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो वो आपके अंदर एक्सट्रोवर्ट ट्रेट्स हैं। वहीं पर आप कहीं ना कहीं अपनी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं या जो डीपर आपकी रियलिटी है वो शायद सबसे शेयर नहीं करना चाहते, और मे बी और चूजी और सिलेक्टिव अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आप बहुत क्लोज होते हैं, राइट, या ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, और मे बी समटाइम्स यू जस्ट वांट टू बी अलोन ऑल्सो, देन मे बी यू आर शोकेसिंग दोज ट्रेट्स ऑफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट, right? So ab usi basically based upon these aspects of that, how do we deal with people, what kind of conversations we are, what is our behavior or conduct while we are interacting with strangers, then how are we are in our solo time, राइट, जहाँ पे कभी कोई हमारे उस वक्त कोई हमारे साथ नहीं है, देन व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स डू वी कैरी एंड व्हाट आर सम ऑफ द पर्सनल बिलीव्स दैट वी हैव फॉर आवरसेल्व्स. So based upon that, we've categorized people as shy, introvert, extrovert, and obnoxious. अब सबसे ज़्यादा obnoxious में भी एक पर्सनालिटी ट्रेट है जिसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि व्हाट इज द इंटेंशन और द पर्पस ऑफ दैट पर्सन, right? When they are with people, they are not straightforward, or they are not upfront in any way, right? And they would say something, they would end up doing something else. So आपको उनके intentions का अनुमान लगाना या exactly समझ पाना कि what are they up to is always a challenge, right? Then yes, they sometimes seem to be more extrovert, where they would move around talking to almost everybody, and sometimes they are like कि जहाँ पे वो एकदम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेंगे, राइट? जब उन्हें नहीं मन कर रहा है तो वो भी किसी भी तरह की इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो समटाइम्स वी थिंक कि सच पीपल आर मूडी, or such people are like difficult to assess कि yes, again वो मतलब किस तरह के इंसान हैं, are they extroverts, are they introverts? So there is always a kind of a confusion prevailing around them, right? And दूसरा है कि yes, they are people with मतलब lot of thoughts passing their brain at one time. So maybe they are overthinkers also, or maybe they are those sharp minds as well, right? कि बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी आइडियोलॉजीज एक टाइम पे उनके माइंड को, एक ब्रेन को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट कर रहा है, एंड जिसकी वजह से वो शायद खुद भी अपने जो एक्शंस, अपने जो बिहेवियर या कंडक्ट को लेके दे आर वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, राइट? सो ये हैं कुछ जो ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ पर्सनालिटी. शाय आर दोज पीपल हु आर as it is, yes, they find it very difficult to interact, very difficult, they are not at all people person, right? और अक्सर हम लोग shy और introvert में confuse होते हैं, but shy people are underconfident, which is not the reality for introverts. Introverts are actually जो yes, they are choosy, they're selective, right? उनको they are not comfortable, or they don't want to talk to everybody, so they're very selective about the choice of people जिनसे वो बात करना चाहेंगे, जिनके साथ वो collaborate करना चाहेंगे. Whereas extroverts are, they are absolutely open people, right? They are more welcoming, they're more adaptable, they're more enthusiastic, more energetic. अब अगर आज हम देखें तो specifically in with respect to our students, right, or maybe our children at home, we look up to our children, our students becoming more extroverts, right? क्योंकि they are more expressive, right? They're more confident, and उसी तरह से वो एक अपनी पहचान बना पाते हैं या अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा लोगों के सामने कहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट? इंट्रोवर्ट्स को हमेशा ही हम बैक बेंचर्स कंसिडर करते हैं, या मे बी हु आर हिडन, राइट? उनका वो अपना पोटेंशियल को जितने मर्जी भी केपेबल हो, वो अपने पोटेंशियल को ठीक तरह से सबके सामने नहीं लेकर आ पाते हैं. बट वेरी फ्रैंकली,
each personality has its own significance, has its own purpose. अब सबसे पहले तो before I move ahead, ये जो मेरा statement था कि each kind of personality has its own importance, has its own significance. Do we believe in it? Whether you're a shy person or you're an extrovert, introvert, or even if you're an obnoxious person, that means you're more uncertain, you're more unpredictable. हर personality type का अपना एक significance, अपना एक purpose है. Do we agree to that? Okay, Shah Samir ji, you agree. Shah Krishna ji, you too, right? Dipali ma'am. Yeah, that's like, look, हम यहाँ पर एक open forum पे हैं, and very frankly, I would be more than glad अगर हम difference of opinion, को discuss कर सकें. अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, if you feel कि नहीं नहीं, how can we, somewhere what, consider shy people to be, impactful, or maybe obnoxious people also to be, okay, कि ठीक है, even they are required. Okay, now based upon these broad 4 different types of personalities, क्या हम सोच सकते हैं कि वो किस तरह के professions में best fit in करेंगे? Do shy people also have certain professions where they can make their, make their career? Do shy people also have certain, what do you say, uh, opportunities in the professional space? या शाय लोगों की कहीं जरूरत नहीं है? मैम जो मतलब जहाँ पे हमें पब्लिक इंटरेक्शन कम हो, जी बिल्कुल, जैसे कि एग्जैक्टली. R&D यस, सेक्शन है, एग्जैक्टली, ट्रू. वो उनके लिए बेस्ट सूटेड है कि बिकॉज राइट, दे आर इंट्रोवर्ट, दे वांट, they ट्रू, are having continuous thinking process inside ट्रू, them, राइट, and they want to be with them, राइट, so एग्जैक्टली, uh, they are best suited for that section as per my belief. And I डेफिनेटली. am Gujarati, and we have जी सर, two sayings. जी सर. The one, both are contra, means they are contradicting with each other. One is na bolwama navgun, means जितना कम बोलो उतना अच्छा है. उतना अच्छा और है, बिल्कुल. दूसरा दूसरा है कि बोले है ना बोर बेचे, मतलब आप बोलोगे तो आप किसी को कुछ समझा पाओगे या कन्विंस कर पाओगे. जी, कन्विंस कर पाओगे, So, एग्जैक्टली. as per my belief, we can, as and when required, we can ट्रू, go with it. ट्रू, ट्रू. वंडरफुल. थैंक यू सो मच भवन सर. एंड मतलब बहुत अच्छा लगा जो एक आपने अपना पर्सनलाइज्ड एस्पेक्ट भी इसमें ऐड किया, कि वही बात है कि कुछ टाइम पे चुप रहना इज द बेस्ट काइंड ऑफ मेच्योरिटी, राइट? एंड कई बारी वही बात है कि अगर आप कहेंगे नहीं तो लोग आपको ठीक से समझेंगे नहीं, और उसी में यस ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन्स डेवलप हो जाती हैं. एंड सेम शाह समीर जी ऑल्सो same shares a similar opinion, where he says that shy and introvert people are more in research and development. I think introvert, of course, we've discussed ki they are more, they're not open to everybody. They're more kind of selective, and they would, in fact, they're more calm and peaceful, right? वो बहुत जल्दी से excited नहीं हो जाते हैं जैसे कि extrovert लोग होते हैं. But shy लोगों का सिर्फ एक concern है कि वो under confident होते हैं, राइट? तो आई थिंक स्पेसिफिकली हम में से किसी के लिए भी प्रोफेशनल स्पेस में आने के लिए हमारे कॉन्फिडेंस लेवल्स हैव टू बी एटलीस्ट एट बैलेंस. इफ आई मीन ओके, मे बी वी आर नॉट in some people are confident in every situation, but some people are like, okay, this is my kind of working, this is my kind of space, these are my kind of people. तो maybe तभी हमारा confidence वो कहीं ना कहीं व्हाट बैलेंस रहता है, राइट? नहीं तो वही है कि वहीं पे चांसेस है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं गिरने लग जाता है. सो थोड़ा सा मे बी शाय पीपल जस्ट हैव टू वर्क अपॉन देयर कॉन्फिडेंस एस्पेक्ट, वही उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा. बट अदरवाइज डेफिनेटली दे विल बी मोर साइलेंट, there'll be people working in exclusive spaces, right? And who are more focused on their thoughts and concepts, जो कि R&D में भी है and creativity में भी है, right? People like who are artists, right? People who are into
what do you say, poetry, deep poetry, right? तो उनके लिए वो अपने silent zones होना बड़ा ज़रूरी है. तो I think that's how they make a mark, and they're able to do things more effectively, which maybe extroverts and obnoxious people cannot do. Now obnoxious वैसे तो एक derogatory word है, right? जो कि basically mostly इस उसमें आता है कि not acceptable, right? It was an obnoxious act, it was an obnoxious gesture, right? तो maximum times तो हम इसको not acceptable category में डालते हैं. लेकिन साथ ही साथ ये वो trait है जहाँ पे people are uncertain in their behaviors, in their conduct, or maybe they are more unpredictable. तो आप मैक्सिमम टाइम्स उनके बारे में अनुमान या अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ज्यादा सीक्रेटिव है, राइट? साथ ही जैसा वही है कि उनके साथ हमेशा ही एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जुड़ा रहता है कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो ऐसे भी कोई हैं प्रोफेशंस जहाँ पे we cannot kind of till the last moment we cannot predict what is gonna be happening. Do we need such personalities also in certain professions? Obnoxious, जिनका वही बात है कि they are unpredictable, they're uncertain, and always defense. Yes, very true, Anita ma'am. And specifically I think हमारे वो जो secret agents या intelligence agents होते हैं, राइट? जो एज इट इज यस आपके साथ होते हुए भी वो आपको पता नहीं चलने देते हैं कि यस उनका इंटेंशन, उनका पर्पस क्या है. सो पीपल आर ट्रेन्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स. There's a special kind of training for I do a lot of work with the defense forces. I happen to be part of the Indian Army Sadbhavana project also in the LOC areas of Kashmir, right? So matlab seriously when we take up those work assignments तो almost last moment तक हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम किस लोकेशन पे ऑपरेट करेंगे या वो एक्चुअली कौन टारगेट ऑडियंस होंगे जिनके साथ हमारा आगे कोई इवेंट या कोई वर्किंग होगा इन कोलैबोरेशन. सो कीपिंग अप दैट सीक्रेसी, right? And then definitely having that element of surprise, ki wonder what has gonna happen next. So I think now we are all with this at least open mindedness or this clarity of thought ki all personalities are have their own significance, and they have their own professional what do you say, opportunities also, राइट? हम किसी को ये नहीं मान सकते हैं कि यस अगर तुम बोलते नहीं हो या अगर तुम ज्यादा शांत रहते हो तो मे बी तुम्हारे लिए कोई करियर ऑप्शंस नहीं है. अब हम वापस जाते हैं कैरेक्टर पे, right? I really want to take both these aspects hand in hand, because very frankly character is what we are intrinsically, or maybe the real person who we are, right? और ये characters कैसे shape up होते हैं. अब in fact एक Maslow's need theory हमने अगर सुना हो. Have you heard about Maslow's need theory? Any one of us? That's a very strong, psychological aspect, which specifically, kind of emphasizes or makes it clear कि जो लोगों के mostly सोच, समझ, बिहेवियर, कंडक्ट, इंटेलेक्ट या जिस तरह से उनके कुछ सर्टेन हैबिट्स होती हैं, दे आर बेस्ड अपॉन देयर जो उनका क्या कंडीशनिंग रहा, क्या अपब्रिंगिंग रहा, या उनके लाइफ में क्या तजुर्बे रहे, राइट? चलिए अब हम आई विल शेयर दैट मैस्लोज नीड थ्योरी विद यू, एंड देन वील गो स्टेप बाय स्टेप विद द सेम. So I believe my slide is visible. Yes, ma'am. Okay, thank you so much, sir. So now अब ये है Maslow's need theory, and ये एक hierarchy है, right? एक pyramid structure है जिसमें हम bottom जो सबसे broad है वहाँ से start होंगे, and gradually we'll be moving towards the peak. अब ये है जो हम सब के levels in life हैं, right? Or maybe basically levels of what we've achieved in life,
right? Today I run an NGO also, so I am somewhere, I would say, fortunate कि I work with all different strata of society and people from all different, segments, all different financial backgrounds, right? From the most deprived one to the most elite one. And accordingly मैं ये हर दिन, कहीं ना कहीं विजुलाइज भी करती हूँ कि जिसको जिंदगी में जितना मिला है वो उतना ही, एक्सप्रेस कर पाता है, उतना ही दूसरों के साथ शेयर कर पाता है. आई थिंक अगेन यू वुड एग्री टू दिस, कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी शेयर किया. आई कम बैक टू दिस स्लाइड वंस अगेन. मैंने कहा कि जिसको लाइफ में जितना मिला है वो उतना ही एक्सप्रेस कर पाएगा या दूसरों के साथ शेयर कर पाएगा. इफ आई एम डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, जिस चीज़ का मुझे रियलाइजेशन ही नहीं है या जिस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, क्या वो मैं किसी और को एक्सप्रेस कर पाऊंगी या शेयर कर पाऊंगी? इज इट पॉसिबल? नो. anything, whether it is name, fame, experience, right? जो चीज मेरे मेरे पास है ही नहीं, वो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ या कैसे शेयर कर सकती हूँ, राइट? सो नाउ दिस इज हाउ different people express differently, right? Or maybe their behavior, conduct, or their personalities shape up in a different way based upon how much they have received in their life. अगर कहीं कोई कुछ गैप्स रह गए, कुछ कमी रह गई, तो वो आपकी पर्सनालिटी में सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है, राइट? चलिए अब हम वापस जाते हैं मैस्लोज नीड थ्योरी में. देयर इज दिस हायरार्की. अब सबसे हायरार्की में जो बॉटम लेवल पर है, दैट इज जहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट, जो भी आपकी बॉडी की नीड्स हैं, अगर वो फुलफिल नहीं हुई हैं तो आप उससे नेक्स्ट लेवल, जिसको हम इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, वो हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं, राइट? जिसमें टू बिगिन विथ, अगर मैं एक लेमैन स्टेटमेंट देना चाहूँ तो रोटी कपड़ा मकान, right? There was long back, there was a movie also, Rajesh Khanna's movie with this name of Roti Kapda Makan, जो कि बेसिक नीड्स कंसिडर की जाती हैं एवरी ह्यूमन की, राइट? हर इंसान की. अब वही बात है कि जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उसको उससे बड़े लेवल की बात कि यस मुझे व्हाट एक अच्छे घर में रहना चाहिए या मुझे सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए, उसको ये बातें नहीं समझ आएंगी, राइट? और ऐसा इंसान जिसका ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई है, रोटी मतलब पहले तो मैं वही कहूंगी कि खाना, राइट? क्या वो इंसान इंसान भी दिखेगा? क्या वो इंसान जैसा लगेगा? विल दैट पर्सन एक्चुअली बिहेव और हैव अ पर्सनालिटी लाइक अ ह्यूमन whose basic needs have not been fulfilled? नो जो मैम. भूखा है कई दिनों से, राइट? और वही चीज है कि शायद उसके तन पे कपड़े भी नहीं है और घर का तो पता ही नहीं है. क्या ऐसा इंसान इंसान के जैसा दिखेगा या बिहेव करेगा? एनी वन ऑफ यू? नहीं. भवन सर सेज नो, राइट? सो I think this we all can connect with, right? भूख, हंगर, राइट? इनफैक्ट हम लोग नॉर्मल लोग भी, पढ़े लिखे समझदार लोग भी, sometimes when we are like we've had a long hours of fasting or we've not had our meals for a long time, we also get irritated, we get erratic, right? And in fact उसी में we start doing things which are not sensible, राइट? या हम जितने मर्जी चाहे समझदार हों, बट हम वो उस टाइम पे वो समझदारी नहीं दिखा पाते हैं जब हमारी जो बेसिक ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई, राइट? सो दिस इज व्हाट, अब जो एज इट इज डिप्राइव्ड है, भूखा है, राइट, जिसको हर चीज की जिंदगी में कमी रही है, उसका बिहेवियर कंडक्ट हमेशा सिर्फ छीनने का, राइट? ओके, उसका चरित्र कैसा होगा? जो भूखा है, जो कहीं ना कहीं वही मैंने कहा, जैसे डिप्राइव्ड है, जिसको हर चीज की कमी है जिंदगी में, उसका चरित्र कैसा होगा या उसका चरित्र भी होगा? ये मैम एक कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि कई बार वो जिनको बहुत ही ज्यादा कुछ चीज की जरूरत है, जी. फिर भी वो मतलब हम जो सोचते हैं उनसे उल्टा वो करते हैं बिहेव, ओके. मतलब ओके. ओके.
वो मुझे लगता है कि उनका इनहेरेंट जो वैल्यूज है वो राइट, इनबिल्ट है उनमें, तो वो राइट, मतलब ये ट्रू, केस टू केस अलग चीज हो सकती है, बट ट्रू, इन जनरल ट्रू, नॉर्मलाइज करें उसको तो राइट, आप जो बोल रहे हो वो डायरेक्शन में वो हम राइट, सोच सकते हैं कि राइट, उनका राइट, पहला रिएक्शन उस चीज राइट, को लेने का होगा, या राइट, फिर सब राइट, ग्रीडी काइंड ऑफ के ग्रीड, सब चाहिए एग्जैक्टली, चाहिए, एग्जैक्टली, राइट, ट्रू सब सर। चाहिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं भावन सर, कि वही चीज़ है कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट देन वेरी फ्रैंकली somebody who's seen that, kind of scarcity, or who has been deprived for over maybe generations, राइट, आप एक वही बात है कि एक मे बी डेली वेजर के घर में पैदा हुए, राइट, तो आपने वो बचपन से गरीबी, बचपन से यस वो भूखमरी देखी है, एंड फिर वही बात है कि उसके चलते आपके अंदर वो कई ट्रेट्स, कई उस तरह की वैल्यूज डेवलप हो गई कि पहले तो मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, राइट, दूसरा ये है कि यस मुझे मे बी जहाँ से भी कहीं कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है तो मैं उसको झपट लूँ, उसको अपने, या प्लीज शाह सामिर जी। Yes. Am I audible, madam? यस यस, यूर Uh, ऑडिबल। हाँ जी। Actually, madam, it's a gray area. राइट। You cannot jump to the conclusion. हम्म। जो This is what my belief. क्योंकि राइट। मैंने ऐसे कई किस्से देखे हैं कि जी। जो डिप्राइव्ड है जी। वो सिचुएशंस में से आए हैं, जी। सो दे विल मोर अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर डिप्राइवनेस, और शायद बड़े होकर मे बी दे आर टर्न 180 डिग्री और हम्म। हेल्पिंग अदर्स। सो हम्म। इट्स ऑलवेज ए ट्रू। ग्रे एरिया, जैसे भाविन सर ने ट्रू। बोला, राइट। यू कैन नॉट कंक्लूड कि भाई राइट। इसकी पर्सनालिटी या इसका बिहेवियर, राइट। राइट। maybe the way of perceiving the things ट्रू। matter more. बिल्कुल That is what बिल्कुल। I personally believe. Maybe I am wrong. नहीं नहीं सर नहीं सर, यू आर आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही राइट। कह रहे हैं, हाँ लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि वो उस इंसान की स्टेज बदल गया है। आपने जब कहा कि वो इंसान ज्यादा शायद मददगार होगा, तो वो मददगार तब हो सकता है जब वो हाँ, खुद सही सेल्फ बात है, सफिशिएंट होगा। सही बात। पर मैम वो जी। शायद जो उन्होंने वर्स्ट टाइम जी। देखा है वो जी। उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं उस टाइम पे कि बिल्कुल कर सकता है, हाँ, राइट। लेकिन वो जैसे लेकिन वो समीर सर ने ग्रेजुअल बोला। प्रोसेस है कि पहले उसको किसने मदद किया, उसको कौन हाँ, अपलिफ्ट सही कर है, पाया, सही है, सही फिर है, वो सर्टेन स्टेज पर आने के बाद सही वो है, उस चीज को ज्यादा वैल्यू करेगा। सही है, सही है। Yes, लेकिन because I am again sharing it with my personal experiences, I actually work with this marginalized group, यस। right? जहाँ पे seriously वो भूखमरी है, मतलब specifically COVID times, we all हम्म had those most difficult times of COVID, जब हमें बाहर निकलने से भी डर लगता था, and ऐसे ही लगता था कि बाहर से कहीं कोई आ रहा है हम्म, तो वो शायद इन्फेक्शन लेकर आ रहा है। हाँ, So when सही। we were working in these all slums and उस तरह से, तो देवर पीपल की जो रोज काम पे जाते थे, बिकॉज देवर डेली हम्म वेजेस, दे हम्म सेड मैम कोविड से तो बाद में मरेंगे, शाम हम्म तक अगर कमाएंगे नहीं तो भूख से मर हम्म जाएंगे, हम्म राइट। तो हम्म वो मतलब वही चीज है, और कि कई जगहें तो ऐसा भी था कि लिटरली जब हम लोग वो रिलीफ मटेरियल लेके पहुंचते थे तो वो टोटल छीना झपटी और उस सही तरह से। बात है, सही बात यस, है। बट कंसर्न ये है कि ठीक है, वी कैन नॉट अगेन ब्लेम देम, वो हम्म इतना ज्यादा डिप्राइव्ड है कि हम्म अगर वो अपने हक के लिए मे बी हम्म छीनेंगे नहीं, तो हम्म वो फिर उसी हम्म उसमें रह जाएंगे, वो हम्म फिर वो जो उनकी जो बेसिक जरूरत है वो पूरी नहीं कर हम्म पाएंगे। सो दैट्स द बेसिक लेवल, राइट। हम्म। अब इनफैक्ट वो सर्वाइवल के लिए वो exactly, that's डार्विन the का रूल आ survival, जाता right? है They're कि not living, they're just surviving, right? हम्म Exactly, you use the हम्म right word, हम्म Bhavin sir. हम्म And in fact, let me tell you, I'm a life skills educator, and that along with that I'm a sex educator also, and specifically my NGO, we work on prevention of sexual abuse. हम्म अब आज हम लोग बहुत ज़्यादा every day we are hearing it in the newspapers, and this news of like lot of sexual harassment happening and all. So somehow I work with the abusers also, right? Abusers बोल लीजिए, rapist बोल लीजिए, right? क्या हमने कभी समझा है कि कोई रेपिस्ट क्यों बना या कोई अब्यूजर क्यों बना? लेट मी टेक यू बैक टू दी जो हमारा ये मैस्लोज नीड थ्योरी है। हम फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहे थे, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उसमें एक बहुत और मेजर नीड है जिसके बारे में अक्सर हम पब्लिकली बात नहीं करते हैं, दैट इज सेक्स, राइट।
अब वही बात है कि जिनको हम सेक्सुअल अब्यूजर्स देखते हैं या रेपिस्ट देखते हैं, वो आज उनका ये नीड कहीं यस अगर जो टाइमली फुलफिल होना चाहिए, अगर ये नीड से भी वो डिप्राइव रह जाते हैं, तो टुमारो दे ऑल्सो टर्न आउट टू बी यस वो जो उनका हंगर रह जाता है, दे ऑल्सो टर्न आउट टू बी अब्यूजर्स और नथिंग लेस देन एनिमल्स, राइट। ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स ही होते हैं। अब अगर हम देखा जाए तो व्हेन वी आर हंग्री, सो हमारे अंदर भी वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं कि पहले तो भूख मिटाओ, उसके बाद मुझे कोई बात समझ आएगी। सो दिस इज व्हाट मतलब नॉर्मल एनिमल्स आल्सो डू। उनको सिर्फ अपनी अपनी वो सर्वाइवल, अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पता होते हैं, उसके अलावा सोचने समझने की उनमें काबिलियत नहीं होती है, विच ओनली वी ह्यूमंस डू। बट वो भी अगर हम सर्टन लेवल अपना फुलफिल कर पाए हैं। अब इसके नेक्स्ट जो हमारा लेवल है दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी जिसमें एक्चुअली हमारा घर भी आता है, राइट, इवन मकान भी बाद में आता है। उसके अलावा सेफ्टी लाइक अ सेफ जॉब, राइट, सेफ करियर, अ सेफ प्लेस टू लिव, राइट। आज अगर हम देखें ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड इज एट वॉर नाउ, right? Abhi recently with this Iran and Iraq also kind of now getting into conflict, or maybe these what do you say, direct kind of missile attacks happening, we know कि half of the world is already into war, right? And कहीं ना कहीं ऐसे circumstances में हमें भी कहीं ना कहीं वो लगता है कि पता नहीं कब हम भी उस थ्रेट में आ जाएंगे, या मे बी वील बी ऑल्सो नॉट इन अ सेफ एनवायरमेंट, राइट। सो वही चीज है, ये जो एक सेंस ऑफ बीइंग सेफ, जहां पर यू फील यू आर सराउंडेड बाय द राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट। आपको हमेशा थ्रेटन्ड फील नहीं होता है। इवन जिसमें वही चीज है कि आपको ये नहीं लगता है कि कोई आपको बिना वजह परेशान कर रहा है या हरास कर रहा है, राइट। अब इनफैक्ट जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा जो एक सेफ्टी एस्पेक्ट है दैट इज इवन योर मेंटल एंड इमोशनल सेफ्टी, राइट। आप कितना ज्यादा यू फील कि यस यू आर सराउंडेड बाय पीपल जो आपकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, अननेसेसरली आपको परेशान करने की तरीका की कोशिश नहीं कर रहे हैं, राइट। और जब ये मतलब आपकी जब तक ये लेवल फुलफिल नहीं होता है, तब तक आप दूसरों के साथ में भी अच्छे नहीं हो पाते हैं, राइट। जब तक यू फील यू आर थ्रेटन्ड, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं हमेशा ड्विंडल करता रहेगा, हमेशा डगमगाता रहेगा, राइट। और जब आप ही कहीं वो सेफ नहीं फील कर रहे हैं, यू नॉट फीलिंग कि यस यू कैन ट्रस्ट पीपल अराउंड, तो आप भी उनके साथ अच्छे नहीं हो सकते हैं। आप भी उनकी तरफ अपना जो जेन्युइन केयर्स हैं, जो जेन्युइन कंसर्न्स है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, right? Okay, let me give you more simpler examples जिसमें वही चीज है कि एक बच्चा जो सड़क पर भीख मांग रहा है, राइट, जिसने कई दिन से खाना नहीं खाया है। अब अगर हम उस बच्चे को पकड़कर ये कहते हैं कि बच्चा आप चलो मेरे साथ, मैं आपको स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, तो क्या उस बच्चे को ये बात समझ आ जाएगी जिसने कई दिन से खाना नहीं खाया है, जो कई दिन से भूखा है, और शायद उसके पास प्रॉपर कपड़े भी नहीं है पहनने को, और हम उससे कहते हैं कि हम तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिट कराएंगे, अच्छा खान अच्छे माहौल में यस तुम्हारी परवरिश होगी, तो विल दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड, विल दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड दिस? नहीं, राइट, क्योंकि अगेन उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स अभी फुलफिल नहीं हुई है। अब यही बच्चा जिसको हम यस मे बी अपने साथ ले आते हैं, हम उसको एक अच्छे घर में उसको परवरिश दे रहे हैं, उसको अच्छा खाना दे रहे हैं, तो उसके बाद यस हाँ, दैट इज वाई मिड डे मील स्टार्टेड, सो ट्रू सर, राइट। उसके बाद वही बात है कि यस अब जब वो उसको लगता है कि मैं एक सेफ एनवायरनमेंट में हूँ, अच्छे लोगों के बीच में हूँ, तो शायद वो नेक्स्ट लेवल की बात सुनेगा या समझेगा कि यस मुझे स्कूल जाना चाहिए, या मुझे अब अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, राइट। एंड स्पेसिफिकली जिसमें हमारा थर्ड लेवल आ जाता है, वेयर यू फील लव्ड, वेयर यू फील कि यस देर आर पीपल अराउंड who have a sense of belongingness towards you, or there are individuals to take care of you, right? अब यही एक हमारा फैमिली सेटअप भी होता है जिसमें हम सब even
even if we are somebody as a introvert or a shy person, we all want to collaborate or associate, or we all want to grow up in a family, राइट क्योंकि हम में से कोई भी यस सोशली डिप्राइव नहीं रहना चाहता है, और हमारा जो फर्स्ट सबसे इंटीमेट सोशल सर्कल होता है वो हमारी फैमिली होती है, राइट जिसमें हमें वो यस अच्छेपन का एहसास होता है, हमें ये लगता है कि लोग हमारा ध्यान रख रहे हैं, हम भी उनकी तरफ यस वो अपना लव एंड केयर्स एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब जब हमारे ये तीनों लेवल्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वो जो नेक्स्ट लेवल विच मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट हैव रीच्ड आउट टू, राइट, व्हेन वी स्टार्ट सेइंग कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है, राइट, ये मेरी तरह की व्हाट यू से लोग नहीं है, राइट, ये मेरी पसंद या मेरी चॉइसेस को सूट नहीं करता, जब वो मैं जागने लगता है, राइट, विच इज योर प्राइमरीली योर एस्टीम और सेल्फ एस्टीम, राइट, अब हमें लगने लगता है कि इस मैं का भी कुछ सिग्निफिकेंस है। आई थिंक उससे पहले सब चीजें मे बी यस वही था कि आई वाज स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ यस फीलिंग सेफ, आई वाज स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ, वहां तो सर्वाइवल की लड़ाई चल रही थी। अब हम सर्वाइवल से उठकर अब एक्चुअली यस वी स्टार्ट लिविंग, और वी स्टार्ट नाउ connecting ki yes, this is my choice, this is my way of doing things, this is my life, and I have to now have some plans, some futuristic objectives for my life, right? तो ये सेल्फ एस्टीम एस्पेक्ट हमारे एक्चुअली चौथे लेवल पर जागा। अब जो इससे पीक पर है, हाईएस्ट लेवल जिसको कहते हैं, विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट, जिसमें हमने we've taken aspects like morality, creativity, problem solving, right, acceptance. In fact आज वही बात है कि maximum जो problem है वो problem around इसलिए prevail कर रही है क्योंकि there is lack of acceptance, right? लेकिन अब हमें क्या accept करना है, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पर कहते हैं। व्हाट डू वी नीड टू एक्सेप्ट? अभी आप लोगों ने भी बहुत कुछ एक्सेप्ट किया, आपने ये एक्सेप्ट किया कि लोग डिफरेंट होते हैं, उनकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, एंड हर पर्सनालिटी का अपना एक सिग्निफिकेंस, अपना एक पर्पस है। सो डू यू रियलाइज कि आपके सर्टेन लेवल्स फुलफिल हो चुके हैं, इसीलिए आज आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस है, राइट? अगर आपका वो अपना सेल्फ एस्टीम लेवल ही अभी फुलफिल नहीं हुआ होता तो आप कभी दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नाउ कैन वी थिंक ऑफ सम पीपल अराउंड जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बहुत इराटिक रहते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें रहते हैं, या जिनके लिए दूसरों को एक्सेप्ट करना या दूसरों को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या शायद वो हमारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। Yes, Yes, now can yes. we understand why they are not able, as young people, why majority of the times they are not able to accept others, specifically उनको जो हमसे अलग हैं, जो हमसे डिफरेंट हैं, क्योंकि उनके नीचे के लेवल्स अभी फुलफिल नहीं हुए हैं, राइट? खासकर वो सेल्फ एस्टीम लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। मे बी हो सकता है कि बाकी चीजें कि ओके दे कम फ्रॉम well-to-do families, they've had a good upbringing, good schooling, good education, everything, वो शायद fulfill हो चुका है, लेकिन अभी तक just because they've not developed that self esteem is जहाँ पर yes you are able to at least you're not just confident but you're even able to respect yourself, जिसको हम आत्म सम्मान भी कहते हैं, राइट? तो अब सबसे जो एक बहुत अहम ज़रूरत है एक पॉजिटिव पर्सनालिटी की, कि आपका सेल्फ एस्टीम कितना स्ट्रॉन्ग है। बट अब कंसर्न ये है कि हम कब अपने आप को रिस्पेक्ट कर पाते हैं, हम कब खुद का सम्मान कर पाते हैं। When are we able to respect ourselves? Yeah, Sher Singh ji, I can see the hand raised. शेर सिंह पिलानी से, पिलानी इंस्टीट्यूट से। यस आप सर आपका हैंड रेज्ड है, या आई थिंक इज इट बाय मिस्टेक? एनीबडी एल्स? माय क्वेश्चन वाज व्हेन आर वी एबल टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स?
आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर है, या फिर हम इसमें ज्यादा यस कहीं ना कहीं व्हाट यू से कंफ्यूज हो गए हैं कि ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं आ पा रहा है, या क्या है? भाविन जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन हाँ, है। राइट। देखिए, वैसे मतलब नॉर्मल हम सभी कहते हैं कि राइट ये मेरे लेवल की चीज नहीं है, या ये मेरे आत्मसम्मान को आपने ठेस पहुंचाई। बहुत बार हम इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन कई बार हम यही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फिगर आउट करना कि हम अपना सम्मान क्यों करें, राइट? या हमें ऐसा हमारे अंदर क्या है कि जिसके बेसिस पे हम वो सम्मान के लायक हैं, या so I आत्मविश्वास। think या जी हाँ, जी सेल्फ जी, रियलाइजेशन, या सेल्फ रियलाइजेशन, आप एग्जैक्टली। मतलब ट्रू। अपने आप के साथ जी, टाइम स्पेंड करो, टाइम थोड़ा स्पेंड करें। मेडिटेशन करो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। then you can realize के ट्रू your existence is there, ट्रू ट्रू। and it may help कि एग्जैक्टली। आपको आपको खुद को समझने में भी वो एक हेल्पफुल हो सकता है। Very true, sir. Very true. So, I am. Thank you so much, Bhavin sir. And that was a very honest confession कि वही चीज़ है कि कई बार हम लोग इन चीज़ों को शायद गहराई से सोचते भी नहीं है, राइट? और आज हम वही बात है कि एज टीचर्स हम वो जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ सुधार ला सकें. वी शुड बी एबल टू मेक अ डिफरेंस, बट आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू, right? If you are somewhere confused about yourselves, then definitely आप दूसरों के लिए भी उनको उनकी clarity achieve करने में maybe पूरी तरह से help नहीं कर पाएंगे. So Anita ma'am also says that it's only after self realization that we understand कि where can I actually respect myself, or where do I feel कि yes, now I have achieved that level of self esteem. अब हमें समझ आ रहा है कि majority of us maybe we are still fixed up to that fourth level, that is the level of self esteem. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो वो पीक पॉइंट था मैस्लोज नीड में थ्योरी में, वो मेजॉरिटी हम में से लोग पहुंचते नहीं है उस लेवल तक. अब अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जो बड़े बड़े नामों के एग्जाम्पल्स दूं, राइट, जिसमें रतन टाटा जी, राइट, रतन टाटा जी जो डेफिनेटली जिनका कल देहांत हो गया, राइट, और आई थिंक वो एक बड़ा नाम है जो सिर्फ not in terms of being a big businessman or somebody being a bigger what do you say, business tycoon, right? वो भी हैं जिनको हमने हमेशा उनकी वैल्यूज के लिए या उनकी जो फिलैंथ्रोपी के लिए भी उनको एडमायर किया है, राइट? तो जिनमें वो देने का भाव भी बहुत स्ट्रांग था, राइट? जब आपको लगने लगता है कि अब आप अपनी ज़रूरतों से ऊपर उठ गए हैं, तब आप एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पर आते हैं. अब रतन टाटा जी तो वो हैं जिनके पास एक्स्ट्रा था, मतलब सरप्लस था. बट उसी में एक नाम, इवन अगर मैं बात करूं, मदर टेरेसा. मदर टेरेसा वो है जिनका व्हेन शी पास्ड अवे, एंड उनका मतलब देखा गया कि उनके क्या सेट्स थे, क्या बिलोंगिंग्स थे, क्या बिलोंगिंग्स थी. तो बेसिकली शी हैड जस्ट 2 pairs of dresses. One which she used to wear, and the other was used to be there in her almirah. That was primarily all her assets. She was somebody who gave up her whole life for charity and helping others. तो ऐसे लोग जो yes कम में संतुष्ट हैं, उसके साथ yes वो देखना चाहते हैं कि yes वो अपने जो भी उनके पास है वो उससे कैसे दूसरों को लाइफ में अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया कर सकते हैं. ऐसे लोगों में वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली इस्टेब्लिश हो चुका होता है. लेकिन अब इसका एक और मैं बहुत साधारण एग्जांपल देना चाहूंगी जो मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, राइट? मे बी मदर टेरेसा या रतन टाटा जी को हम सब जानते हैं या दुनिया जानती है, लेकिन फिर एक हमारे देश का फौजी या देश का जवान जो यस बॉर्डर पे खड़ा होता है, और मतलब जब वो ड्यूटी भी दे रहा है, जब वो लड़ाई के माहौल में भी नहीं है, जब वो उस एलओसी एरिया में बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ाई लड़ रहा है, सॉरी नॉट लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ पहरा दे रहा है, जिसमें उसको हर टाइम ये कहीं ना कहीं खतरा है कि पता नहीं कौन सी कब गोली दुश्मन की साइड से आकर उसके जीवन का अंत कर देगी. एंड मतलब यस पता नहीं यस वो उसका कौन सा वो लास्ट मोमेंट रहेगा. अब
उस फौजी का वो कौन सा जज्बा है, क्या वो उसने क्या जिंदगी में पा लिया कि वो उस लेवल तक पहुंच पाया कि जिसमें वो आज अपनी लाइफ तक न्यौछावर करने को तैयार है, या उसको ये भी नहीं लगता है कि यस अगर मैं दुनिया से चला जाता हूँ तो पीछे मेरे परिवार वाले या कौन कौन रह जाएंगे जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। पहले तो क्या हम ये सोचते हैं कि यस उस फौजी की जो तनख्वाह या जो अगर उसके जो एसेट्स हैं वो हमसे ज्यादा हैं एज टीचर्स? ऑलमोस्ट नो। ऑलमोस्ट नो, राइट सर, एग्जैक्टली। लेकिन उसका भी एक परिवार है, उसके भी यस मतलब वो कहीं ना कहीं अपने लोग हैं, राइट, जिनको छोड़ के जाने का कहीं ना कहीं उसको भी डर लगता है, या वो लोग जो एक्चुअली शायद उसी की आमदनी पर निर्भर भी हैं, राइट। लेकिन फिर ये एक बहुत स्पेशल जज्बा होता है, एक बहुत स्पेशल वैल्यू होता है जिसके चलते आपको बाकी सारी चीजें बहुत छोटी लगने लगती हैं। वो हम उसको देश प्रेम भी कह सकते हैं, दैट जुनून भी कह सकते हैं कि वो देश के लिए कुछ कर दिखाने का, एंड जिसके चलते मे बी आप व्हाट डू यू से कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, नहीं थे, राइट, कितना पढ़े लिखे थे, नहीं थे, राइट, कितना आपके पास अपने एसेट्स बन पाए, नहीं बन पाए, कितने आपके लाइफ में सपने पूरे हो पाए या नहीं हो पाए। बट आई थिंक व्हेन यू डेवलप दैट दैट पैशन, दैट वो जो एक स्ट्रांग जज्बा, या जब आपको अपने वैल्यूज की क्लैरिटी होती है, तो आप किसी भी उम्र में हो या लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, आप वो सारी स्टेजेस क्रॉस करके भी, यस यस प्लीज। यस मैडम, इन लोगों के कारण से ही देश चल रहा है, हाँ जी सर, इन्होंने देश को बचा रखा है। इन्होंने ही देश को बचा रखा है, बिल्कुल सर जी। तो अब वही बात है कि उस Otherwise, every leader required security, every officer required security. ट्रू, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। आई मीन सर आप कुछ और कह रहे हैं? हेलो, I yeah, sorry sir, I think थोड़ा सा वॉइस का डिस्कनेक्टिविटी था, but I believe yes, what you were trying to say is वही कि they are the ones, जिनके लिए we really need to be grateful, we really need to be thankful every day, right? And they are the ones who've actually crossed all those levels जो अभी हम लोग Maslow's need theory कर रहे थे, right? वो सेल्फ एस्टीम, वो सब उन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। अब उन्हें ये पता है कि now this is my प्राइम वैल्यू, दिस इज मेरा जो सबसे बड़ा एक जुनून, एक एक मेरा जज्बा है, एंड जिसके लिए आई विल बी विलिंग टू डू एनीथिंग, गो अप टू एनी लेवल। I think now that's the highest level of personality development. I might have come from a different way. I might have, I don't know, मतलब what were you expecting out of this session, right? But मैं हमेशा feel करती हूँ कि yes, वही जो मैंने कहा कि हमारा रियल कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारी पर्सनालिटी में, राइट? हम किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्या हमें सबसे हमारे क्या संस्कार हैं, क्या असूल हैं, दे हैव टू बी बेस्ट रिफ्लेक्टेड। आई थिंक देन यू आर द बेस्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। वो आप चाहे दूसरों से कितने अलग हैं, या मे बी आप वो बाकी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली जाते हैं या नहीं जाते हैं, बट व्हेन यू आर doing the real justice to yourself, and then you can be more valuable to others, then you are at the highest level of being the best personality or the best human around, right? Okay, अब कुछ चीजें जो मुझे लगा कि मे बी स्पेसिफिकली हमें अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करने की जरूरत है, राइट? सो वो based upon again my personal experience and what I normally do with my in my sessions also, right? As I said, I'm a life skills trainer, and I specifically specialize in lot of activities, मतलब practical exercises, because मुझे ये लगता है कि हम सबसे ज़्यादा अपने experience से, अपने तजुर्बे से सीखते हैं। अब जब हम अपने स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी एनहांस करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें बहुत एक्सपोजर देने की ज़रूरत है, ताकि वो नए नए तजुर्बे, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन कर सकें। खासकर अगर वो मैस्लोज नीड थ्योरी में किसी लेवल पर अटके रह गए हैं,
राइट, या उनका कोई लेवल अभी फुलफिल नहीं हुआ है, तो हम उन्हें जितने नए नए एक्सपीरियंसेस, जितना उनको एक खुला आसमान देंगे टू एक्सपेरिमेंट देमसेल्व्स, वो उतना ज़्यादा और तरह से निखर कर सामने आएंगे, एंड देन दे विल बी एबल टू आउटशाइन the best to their true potential, to the real self they are, right? Jisme we have to give them a lot of scope of making mistakes and going wrong. ये स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है समझनी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है एक्सेप्ट करना, लेकिन क्या आप इसको मानते हैं कि आज हमें अपने स्टूडेंट्स को गलतियां करने की और मे बी एक्सपेरिमेंट करने की या रिस्क लेने की परमिशन, आज़ादी देने की ज़रूरत है, खासकर जब हम उनकी पर्सनालिटी में किसी तरह का डेवलपमेंट, किसी तरह का निखार चाह रहे हैं? Do we need to give that scope to our students to go wrong and commit mistakes? Yes. Okay, Bhavin sir, you believe in it, right? Why? I mean, I think, as all very experienced, all very intellectual people on this forum, हम सब अपने तजुर्बे के बेसिस पे उनको सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो फिर क्यों हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ये रिस्क में डालें कि वो गलतियां करें या वो रास्ता भटक जाएं समटाइम्स? वो लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग है। एग्जैक्टली। In fact, very frankly, as I said, all very experienced people sitting on this forum, right, or connected on this forum right now, आज जब आप अपने आप को तजुर्बेकार मानते हैं, right, failures make pillars of success. Yes, true नारायण sir, thank you. So जब हम आज अपने आप को experienced देखते हैं, तजुर्बेकार मानते हैं, या हम अपने आप को ज़्यादा सुलझा हुआ, समझदार मानते हैं, we need to somewhere reflect back. We have gained all this, wisdom, all this sensibility based upon the number of mistakes that we've made. जितनी गलतियां हमने की, उतना ही हम समझदार और कहीं ना कहीं लाइफ में सुलझते चले गए। Yes, do we believe in it? Yes ma'am. Bhavin sir, आप मानते हैं? What about rest? Because again, this is a forum where we need to kind of share, discuss and actually brainstorm on difference of opinion. अगर हमें लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम गलतियां करके थोड़ी ना समझते हैं या समझदार होते हैं, राइट? तो अगेन इनफैक्ट जितना हम लाइफ में उलझे, जितना हम लाइफ में हम लोग कहीं मिसगाइड हो गए, डिविएट हो गए, कंफ्यूज हो गए, उतना ही ज़्यादा जब हमने और एफर्ट लगाया उस कंफ्यूजन को रूल आउट करने का या उस उलझन से बाहर निकलने का, वही एक्चुअली हमारी लाइफ की समझदारी या विजडम बन गया, राइट? So thank you so much, Anita ma'am. You also support this opinion, right? Next, let's go back. What more we can do for our students? We need to put them into the most difficult and challenging situations and actually let them put efforts to develop their coping up abilities. हमें उन्हें easy situations, easy circumstances नहीं देने हैं। जितना ज़्यादा हम उनके challenges बढ़ा सकते हैं, उनके लिए difficulties create कर सकते हैं, right, उतना ज़्यादा उनकी coping up ability बढ़ेगी। But अब देखा जाए, again, this might be, what do you say, we might feel कि क्या ज़रूरत है, राइट? हम क्यों इतना अत्याचार करें अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, राइट? क्यों उनको, when they can actually learn from easy ways also, then why do we need to give those difficult times and challenges to our students? Is there a need? क्या ज़रूरत है? क्या ये सही है to create difficulties and challenges for our students? मैं ये मानता हूँ मैम कि कॉम्बो होना चाहिए। Okay, ठीक है जी। क्योंकि Combo में एवरी क्या टाइम क्या यू है सर? एवरी टाइम यू कांट बी सो हार्श और बहुत सॉफ्ट भी नहीं हो सकते हो। Right, true, तो true. क्योंकि अगर वो इमोशनल डिसकनेक्शन हो गया तो Right. वो कुछ भी आप करोगे वो Yes. उसको मतलब हाँ, इंस्टेंट कुछ नहीं हम
right, उनको रियलाइज करवा पाएंगे right, कि व्हाई वी right. आर डूइंग दिस. सो Exactly, दोनों चीजें exactly. एक्चुअली एज अ टीचर हमको एक 70 Balance. स्टूडेंट्स को साथ में पढ़ाना है. सो जी. क्लास में भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. Right, सो right. उसमें भी यही चीज होती है कि यू शुड बी स्ट्रिक्ट आल्सो एंड यू True. शुड बी फ्रेंडली आल्सो. Friendly दोनों also. Right, right. दोनों चीजों True. को ऐसे ब्लेंड करना है कि you can effectively pass your message to them. Very true, sir. Right, exactly. I totally agree to that, sir. That we need to strike a balance. हम बहुत harsh भी नहीं हो सकते और हम बहुत soft भी नहीं हो सकते. और मैं भी जो सब लिख रही हूँ, that is nothing कि all the time we have to do that, but it is more often. आज actually अगर हम realize करें तो हमारे जो young generation है, उनकी coping up abilities बहुत कमजोर हो गई हैं. And there are numerous reasons for That it. may be due to जी. उनका अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स. Yes, yes. मतलब जो मेरे पेरेंट्स ने मुझको जी. जो चीजें दी है, मतलब Right. जैसे उन्होंने मुझे वैसे हम अपने बच्चों को ज्यादा कंफर्ट देना चाहते हैं Exactly. कि Very true, sir. हाँ. True. So yeah, it begins from homes only, right? हम सब वही गलती कर रहे हैं as parents, as guardians, right? जहाँ पे हम अपने बच्चों की lives easy बना रहे हैं. But I think now, as all mature people, all as experience holders, we know that life is not easy. Life comes with its own, set of problems, set of challenges. And अगर हम अपने बच्चों को आज से उसके लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, तो जैसे भवन सर आपने कहा कि अगर वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया या बच्चा कहीं ना कहीं एज इट इज बिल्कुल ही डीमोरलाइज हो गया, आज तो हम एज इन द कैपेसिटी ऑफ देयर वेल विशर्स हम उनको ये चैलेंजेस दे रहे हैं. लेकिन कल को जब रियल लाइफ में वो चैलेंजेस किसी की तरफ से भी आ सकते हैं या कहीं भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में आ सकते हैं जहाँ पे हमें ये भी नहीं पता है कि उस टाइम पे उनके आसपास कोई उनका वेल विशर, कोई गार्डियन होगा भी या नहीं होगा, तब एक्चुअली दैट विल बी ऑल द मोर थ्रेटनिंग, दैट विल बी ऑल द मोर डिवास्टेटिंग. So basically, when we are looking up to prepare our students for a successful journey ahead, for a more what do you say, a progressive future, we have to prepare them for the real life, real scenario, which is not easy, which comes with its own challenges, with its own uncertainties. And then if they somewhere lack in their coping up abilities, तो उनके लिए सक्सेसफुल होना तो छोड़िए, शायद उनके लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा. यस. सो मैम, जी इफ वी जी थिंक द ऑपोजिट साइड से, जी. हम बहुत सारे हर्डल्स उनको दे रहे हैं, मतलब राइट राइट थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं या, राइट. और उन्होंने अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस गुमा दिया, लूज कर दिया. हाँ जी. हाँ, ट्रू. तो भी ये इश्यू है. मतलब हाँ. ऐसे मैंने कई वीडियोस और ऐसे पढ़ा भी है. राइट राइट तो सर. मैंने ये देखा है कि सपोज पेरेंटिंग की बात करें हम, राइट सो राइट ऐसा होता है कि एक राइट. जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए बच्चे के साथ, और हाँ एक थोड़ा हार्श होना हाँ चाहिए. जी. सो बैलेंस. हाँ. हाँ, राइट वो चीज क्या है कि जो राइट आप बोल रहे हो वो केस भी सही है, और राइट दूसरा के एट द सेम टाइम वो कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करना, या राइट. उसको एक माइंड में रहना चाहिए कि कोई तो है जो मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा. या एग्जैक्टली. या मेरे वो अचीव करने या ना करने से उसको कोई फर्क नहीं होगा. ट्रू ट्रू. सो सर, इनफैक्ट ये कॉन्फिडेंस तो शुरू से लेकर अंत तक रहना चाहिए. इवन जब हम उनके लिए वो चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं या उनको वो कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब हम उनको वो हर बार हैंड होल्डिंग नहीं दे रहे हैं, बट तब भी उनको ये विश्वास होना चाहिए कि यस, कोई है वो जो उनको उनके फेलियर्स में भी एक्सेप्ट करेगा. वो विश्वास के बेसिस पे ही वो लाइफ में आगे वो चैलेंजेस फेस कर पाएंगे. अदरवाइज तो वो स्टार्ट भी नहीं लेंगे, इनिशिएट भी नहीं करेंगे. एंड वेरी फ्रैंकली, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो सारा इट्स अ काइंड ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस दैट वी नीड टू प्रैक्टिस इन देयर लाइफ, जिसमें पिछला वाला स्लाइड भी है. पिछला वाला स्लाइड था, गिव देम द स्कोप टू गो रॉन्ग एंड कमिट मिस्टेक्स एंड देन स्टिल एक्सेप्ट देम. अगर वो गलतियां कर रहे हैं, हाँ, अगर सही वो, तब भी उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है. पड़ेगा, राइट. सही उससे बात. पहले हमने उनको एक्सपीरियंसेस भी देने हैं, एक्सपोजर भी देना है उनको, हमने हर लाइफ का रियलिटी वो करवाना है. स्पेसिफिकली वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर द इंडस्ट्री टुडे. वी हैव टू समवेयर सी टू इट कि यस, वो इंडस्ट्री में जाके वो इंडस्ट्रियल प्रेशर्स
फेस कर पाएंगे, राइट? हम्म, आज हमें लगता है कि उनके लिए छोटा सा क्लास में एक टास्क और हम्म, या मे बी एक प्रोजेक्ट या असाइनमेंट ही हम्म, उनके लिए यस कहीं हम्म, प्रेशराइजिंग हो जाता है। तो आज हमें पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अपने कितने हजारडस प्रेशर्स हैं, हम्म। राइट? एक्चुअली या अभी का सिनेरियो ऐसा है कि यस ये चीजें तो ठीक है, यस उनको एक बेसिक डिसिप्लिन देना ही चैलेंज हो गया है। एग्जैक्टली राइट। सो अब उसके लिए लेट्स आई हैव अनदर सोल्यूशन टू इट, जो हम वही बात कर रहे हैं कि वही डिसिप्लिन या कहीं ना कहीं बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ ड्रिवन, दे पर्सनली जो भी वो कर रहे हैं उनको लगता है कि यस वो तो मे बी इट्स समथिंग दे डूइंग इट फॉर देयर गुड फॉर देयर टीचर्स और मे बी जस्ट फुल टू फुलफिल द द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स। अब let's give them platforms to actually showcase their own individual potential and talent what they have, right? ये विश्वास बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये अच्छाई है, मेरे अंदर ये काबिलियत है, तो फिर मुझे छोटी छोटी हार्डशिप्स, छोटे छोटे चैलेंजेस डराएंगे नहीं, राइट? मैं छोटे छोटे उसमें बिकॉज देन आई हैव दिस दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस और मे बी समटाइम्स इवन दैट सेल्फ एस्टीम ऑल्सो कि दिस इज व्हाट गुड आई कैन डू, right? I am good in yes maybe expressing myself in you know in the public. I'm good in yes writing, I'm good with my ideas, I'm good with my creative ideologies. जिस दिन उनको इस चीज का अपने जो स्ट्रेंथ्स का विश्वास होने लगा, तो वो जो छोटे छोटे लाइफ के हिकअप्स हैं वो उसको बेटर मैनेज कर पाएंगे, बेटर कोप अप कर पाएंगे, right? So everything starts with in fact your self acceptance and self belief, एंड वो तभी डेवलप होता है जितना आपको अपने अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी क्वालिटीज, अपनी अचीवमेंट्स का यस या ना कहीं ठीक है, ऑल डेज कैन नॉट बी days where we are achieving or where we are making a good mark. There will be days where we are failing also, we are not able to prove ourselves, but then that does not mean you are a complete failure, राइट? और ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी है। उस दिन जिस दिन हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस दिन यस जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा है, एटलीस्ट हमें खुद को समझना बहुत जरूरी है, हमें खुद को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यस हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और हमने पास्ट में भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस कोप अप की हैं, तो फिर हम इस डिफिकल्टी से, इस हार्डशिप से भी निकल जाएंगे। And then lastly, now this is something which does wonders, make them responsible. When we talk about discipline, आज लाइफ में डिसिप्लिन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट? जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिप्लिन विच वर्क्स इन एवरी सिचुएशन इज दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। अगर वो किसी और के लिए आज रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, तो कम से कम सबसे पहले वो अपने आप के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो, being responsible towards your own goals, towards your own dreams, towards your own ambitions in life, right? और उसके बाद now prove your capability, become more valuable, where you can be a support or help to somebody else. You can be somebody जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जिस पे टोटल बैंग ऑन किया जा सकता है, where you are organizing events, or maybe you are part of some extracurricular फेस्ट्स और समथिंग, जहां पर यस आपके टीचर्स, आपके बाकी जो पीयर ग्रुप है, वो दे लुक अप टू यू, राइट? जब जिस दिन बच्चे को ये पता चलता है कि देर आर लॉट ऑफ पीपल हु रिलाई अपॉन मी, दे आर एक्चुअली यस एक्सपेक्टिंग मी टू यस मेक इट हैपन, तो वो ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होने लगता है। And again, I would share something with my own NGO experience, only running an NGO, volunteering. Even though I am somebody who works on personality development sessions, I do it जिसमें basically वही चीज है कि how to groom yourself, how to present yourself, how to communicate, how to express, we take care of everything. But believe me, one of the best platforms to actually outshine in your personality is volunteering, right? जहां पर आप हर दिन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना पब्लिक प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपना नॉलेज ट्रांसमिशन स्किल्स, अपना क्रिएटिविटी, हर चीज को पूरी तरह से एग्जिबिट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड सबसे बढ़िया बात है कि वहां पे आपको कोई जज नहीं कर रहा है,
आज मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्यों नहीं आउटशाइन कर पाते हैं, या क्यों नहीं यू नो व्हाट डू यू से रिस्क ले पाते हैं, या क्यों नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय दीज बिगर फियर्स ऑफ फियर ऑफ बीइंग जज्ड, fear of being what criticized, fear of being a failure. और इन्हीं fears के चलते वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा सा इनिशिएटिव भी नहीं ले पाते हैं. तो आई थिंक सबसे पहले तो हमें एज देयर गार्डियंस, एज देयर वेल विशर्स, वी हैव टू एटलीस्ट काइंड ऑफ मोटिवेट देम कि कम से कम ट्राई करना तो शुरू करो. सिर्फ सोचने से चीज़ें नहीं बदलती हैं. Primarily what our young minds are doing is they are only thinking, but thinking does not actually bring about the change only happens when you are working, when you are practicing all these aspects every day. So I'm almost done with my session. Thank you so much.